Hello dear students, welcome in our next video. As we are doing chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. Till now we have studied about the number of chromosomes. It remains constant during sexual reproduction. Flower, the reproductive organ in flower, angiosperms for male and gynoecium is for female, in which we have studied about androecium and gynoecium, and we have also studied the steps of sexual reproduction in higher plants, in which we have studied 5 steps. First one is microsporogenesis, which occurs in male, and second one is megasporogenesis, which occurs in female. Then next step is pollination. Next is development of male and female gametophyte, then gametogenesis, then fertilization, and at last development of embryo, which is also known as embryogenesis. So we have studied only the headings of these steps, but now we will study one by one in detail. We have also studied structure and development of anther, in which I have taught you about the structure of anther. In a structure of anther, 5 structures are there. First one is epidermis, second is endodermis, and then middle layer, then tapetum, then microsporangia. At first, the outer layer of anther is known as epidermis, and just below the epidermis, endodermis is present, and just below the endodermis, the layer is present which is known as middle layer. And after middle layer, just outside the pollen chamber, in wedge shape, tapetum is present, which is diploid. Two number of chromosomes are present in that. And next one is microsporangia, which is present just inside the tapetum. Now we will study how the development of pollen sac or microsporangium occurs. Microsporangium means we are talking about male gametes. So our in sexual reproduction, our first process is microsporogenesis or megasporogenesis, but we are starting in male, so microsporogenesis will occur. So let's start with microsporangium. Here the next heading is development of pollen sac or microsporangium. During the course of development of pollen sac, few hypodermal cells in all the 4 corners or epidermis increase in size and behave like archisporial cells. अब हम जैसा कि जानते हैं, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा फ्लावर्स में, तो सबसे पहली प्रोसेस होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की. लेकिन अगर हम मेल फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है तो उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की थ्रू, और उसी जगह अगर फीमेल का है तो वो मेगास्पोरोजेनेसिस की थ्रू होगी. तो अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेल प्लांट का, तो वो प्रोसेस थ्रू हो रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू. तो जब भी पॉलन सेक में डेवलपमेंट होगा, सेक मीन्स थैला, यू ऑल नो. हम जानते हैं डेवलपमेंट किसके थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू होता है, जो या तो पॉलिनेशन के थ्रू भी जाती हैं या किसी और गैमेट फॉर्म करने के बाद भी रिप्रोडक्शन में जिनमें प्रोसेस स्टार्ट होगी. तो अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है पॉलन सेक में. तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं जो पॉलन के चारों कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं. चारों कॉर्नर एपिडर्मिस के, पॉलन सेक की एपिडर्मिस में चारों कॉर्नर में हाइपोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो साइज़ में बढ़ते जाएंगे, और जब वो साइज़ में बढ़ जाएंगे तो वो बिहेव करेंगे आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह. जैसे कि फर्स्ट ए हम देखेंगे, ये हमारा कंप्लीट पॉलन सेक है, जिसकी बाहर की कवरिंग को हमने नाम दिया है एपिडर्मिस, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी कि आउटर मोस्ट लेयर जो एंथर की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस. और एंथर और स्टेमन मेल का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे हम नाम से ही समझ सकते हैं कि किसका डेवलपमेंट हो रहा है, मेल गैमेट का. तो फर्स्ट एंथर पूरा हमारा ये फिगर है पॉलन ग्रेन्स में, जो एंथर प्रेजेंट है एंथर का, जिसकी बाहर की लेयर, हम डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ रहे हैं, जिसकी बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस. इन सेकेंड वन, इन पार्ट बी, यू कैन सी दैट इन डार्क कलर, ये 4 जो डार्क कलर्स के आपको दिख रहे हैं, एपिडर्मिस के कॉर्नर में डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल्स.
ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स का डेवलपमेंट इसमें हो रहा है। देन एट थर्ड सी पॉइंट्स आप देखोगे सी आर्किस्पोरियल सेल का हमने डेवलपमेंट देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, एपिडर्मिस के जस्ट कोने में जो डार्क कलर के 4 आर्किस्पोरियल सेल्स फॉर्म हुए हैं, उनके अंदर भी कुछ स्पोर्स हमको डार्क कलर के ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस। मतलब जो स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी मतलब शुरुआती, ये जो स्पोर्स इसके अंदर है ये शुरुआती स्पोर्स हैं जिनको हम कहेंगे प्राइमरी स्पोर्स, जिनका डेवलपमेंट शुरू हो गया है। लेकिन सेंटर में भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। एक्सेप्ट द डार्क स्पॉट्स इन सेंटर ऑल्सो सम स्ट्रक्चर इज गोइंग फॉर्मिंग, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड। फोर्थ D1, अब आप देखोगे कंप्लीट जो साइज़ जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे डेवलपमेंट भी होता जा रहा है। आर्किस्पोरियल सेल्स में भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। एक राउंड सर्कल फॉर्म हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, ये डॉट के जैसे ब्लैक डॉट्स की तरह बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो कोने में इनकी ये जो लेयर फॉर्म हो रही है इसको हम बोलेंगे स्टोमियम। स्टोमियम इसको नाम देंगे। और ये जो बीच में जो डेवलपमेंट शुरू हो गया है जिसको हमने नाम दिया था प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड, जो कि उसकी प्राइमरी स्टेज पे था, लेकिन अब ये कंप्लीट डेवलप होके क्या बन गया है, कंडक्टिंग स्ट्रैंड, जो बीच में सेंटर से इन चारों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट इज ई में हमने देखा है जो आर्किस्पोरियल सेल्स का जो एक पार्ट था उसी पार्ट को इनने कट कर दिया है, इस पार्ट को कट करके इनने डिटेल में दिया है। अब इस पार्ट को हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि हमको पता है आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के जस्ट बाद जो नीचे की लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस, जिसको इन्होंने एंडोथीशियम भी नाम दिया है। और एंडोथीशियम के जस्ट नीचे एक और लेयर है जिसको हमने नाम दिया है मिडिल लेयर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब टैपेटम वेड शेप, ये जो शेप है इनका ये वेड शेप कहलाता है। अब टैपेटम किसको सराउंड किया हुआ है पूरे, ये जो बीच में सेंटर स्पोर हैं जिनको हम बोलते हैं स्पोर्स, लेकिन ये मेल के हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोस्पोरेंजिया। यहाँ इनका नाम दिया गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मदर सेल को जो सराउंड करते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, टैप्टम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द मिडिल लेयर। और ये न्यूट्रेटिव टिश्यू है जो यहाँ सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उनको नरिश करता है, उनमें एक्टिवनेस बनाए रखता है। और ये जो पार्ट है जो हमने कोने का पार्ट पढ़ा था उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पे डिटेल स्ट्रक्चर दिया है माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसमें ये बाहर लेयर है एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे एंडोडर्मिस, ये मिडिल लेयर और ये पार्ट टैप्टम। इसी को उनने और डिटेल में समझाया है, माइक्रोस्कोप से और जूम करके समझाया है। और ये जो सेल्स हैं वो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, जो कि सर्कल में इस तरीके से पूरे पैकली अरेंज थे। लेकिन जब इनमें हम डेhiscence ऑफ एंथर पढ़ेंगे, मतलब जब बस्ट होगा तो ये माइक्रोस्पोर सेल्स जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। इसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर, जिसमें फर्स्ट हमने एंथर को लिया, लेटर ऑन उसमें आर्किस्पोरियल सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता गया एंथर का साइज़ भी बढ़ता गया, और एक समय के बाद आर्किस्पोरियल सेल कंप्लीट डेवलप हो गए, जिनको कंडक्टिंग स्ट्रैंड ने होल्ड करके रखा बीच में। और जब एक टाइम के बाद जब सारा डेवलपमेंट हो जाएगा तो एंथर बस्ट होगा और जो मदर सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। और वो जो मदर सेल्स बाहर आएंगी उनसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी एंथर में। वो कैसे, वो हम आगे देखेंगे। We can also understand through this diagram. At first, microsporangiums are arranged in between this type of, then sepal petals, it is shown in flower. See, through next you can understand easily.
that in four corner only in each corner cells are arranged, archisporial cells, 4 cells are arranged. In next, these cells get completely developed in black dots. Then in another stage, breakage occurs and the mother cells comes out. Okay, the next is each archisporial cells divide perisclinally to produce outer primary parietal cell or primary wall cell and inner primary sporogenous cell. Primary parietal cells divide to produce 3 to 5 layered wall. The cell wall of the outermost layer become thickened to form endothecium or fibrous layer. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि जो आउटर कवरिंग है वो पैराइटल सेल या प्राइमरी जो सेल वॉल होगी सेल की वो स्पोरोजीनियस और जो अंदर की स्पोरोजीनियस सेल होगी ये दोनों डिवाइड होंगी और 3 से 5 लेयर फॉर्म करेंगी और 3 से जब 5 लेयर फॉर्म कर लेंगी मतलब इनकी लेयर कैसी हो जाएगी मोटी। तो इससे क्या होगा अंदर जो डेवलपमेंट है वो अंदर ही अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट जब डेवलप हो जाएगा तो एक एक करके वो सारी लेयर्स टूटती जाएंगी और एक समय के बाद जब सारी लेयर्स का ब्रेकेज हो जाएगा तो सारे मदर सेल्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे जिसको हम डेहिसेंस ऑफ एंथर भी बोलते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। The cells of the middle layer become dead and provide nutrition for developing microspores. The cells of tapetum are also used up in the nutrition of microspores. अब जो सेल्स हैं मिडिल लेयर के वो एक एक करके सब ख़त्म होते जाएंगे लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन किसको देंगे माइक्रोस्पोर्स को जो सेंटर में डेवलप हो रहे हैं और जो टेप्टम है वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो बाहर की सारी लेयर्स हैं वो टेप्टम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी और टेप्टम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा मदर्स स्पोर सेल्स को। प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल्स डिवाइड रिपीटेडली टू प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ pollen mother cells or microspore mother cell. These microspore mother cells divide meiotically to produce pollen grains. अब जो mother cells हैं वो भी 1 से 2 में डिवाइड होंगे 2 से 4 मियोटिकली ये डिवाइड होके अच्छा खासा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे जिससे कि ये एंथर फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे pollen grains। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ pollen grains। अब हमने एंथर में पढ़ लिया माइक्रोस्पोर्स कैसे फॉर्म होते हैं लेकिन अब उस एंथर से पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल पार्टिसिपेंट होते हैं उनका हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन होता है। Besides the above changes in the wall layer, the sporogenous layer comprising of primary sporogenous cells also undergo several division to form microspore mother cells or pollen mother cell। अब जो स्पोरोजीनियस लेयर के टूटने के बाद जो चेंजेस देखने के बाद जो हमको सेल्स मिले हैं उनमें भी डिवीजन होगा जब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या हम कहेंगे पोलन मदर सेल्स फॉर्म करेंगे। In the initial stage, the microspore mother cells are closely packed, but as the anther enlarges, the pollen sac becomes spacious and the pollen mother cells assume spherical shape and get loosely arranged। अब फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज में क्या होगा जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड रहेंगे क्योंकि वो एंथर के अंदर हैं और उसके अंदर भी एपिडर्मिस एंडोडर्मिस टैपेटम मिडिल लेयर देन टैपेटम देन माइक्रोस्पोरेंजिया इतनी लेयर्स में अरेंज होंगे तो वो क्लोजली पैक्ड होंगे ठसे हुए होंगे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा जैसे जैसे ब्रेकेज स्टार्ट होगा वो स्पेशियस होते जाएंगे ढीले होते जाएंगे और जो मदर सेल्स हैं उनको फैलने के लिए जगह मिलेगी तो वो किस टाइप में अरेंज हो जाएंगे स्फेरिकल शेप में अरेंज हो जाएंगे और लूजली अरेंज हो जाएंगे क्योंकि उन्हें उतना स्पेस प्रोवाइड होगा। In many cases, some of the sporogenous cells are non-functional and serve only as the nutritive material for the function microspore mother cell। अब जो भी कुछ स्पोरोजेनस सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं होता है लेकिन वो बाकी जो स्पोरोजेनस सेल हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। जिनको कौन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कुछ स्पोरोजेनस सेल्स जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं।
Each microspore mother cell is diploid in nature and by a single meiotic division give rise to 4 haploid nuclei. अब ये सारे इनमें क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं मतलब इनमें 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन, जिससे 2 से ये फॉर्म कितने करेंगे, 4, 2 से 4 का फॉर्म करेंगे जिससे हम बोलेंगे राइज टू 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई। 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियर फॉर्म करेंगे मतलब 2 से 4 का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो चारों सिंगल सिंगल होंगे, उनमें सिंगल सिंगल क्रोमोसोम होगा, इसलिए उनको बोला है हैप्लॉयड न्यूक्लियाई, जो कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। द 4 न्यूक्लियाई सो फॉर्म्ड आर अरेंज टेट्राहेड्रली। अब जो न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रली, टेट्रा मीन्स 4, and cleavage of the cytoplasm occurs separating the nuclei into 4 distinct segments. अब उनमें क्लीवेज की प्रोसेस होगी जो हमने पहले भी पढ़ी है साइटोप्लाज्म में, उससे क्या होगा, चारों न्यूक्लियाई चारों सेल्स में अलग अलग सेगमेंट्स में अरेंज हो जाएंगी और सेंटर में और उस सेल को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर सेल्स, विच फाइनली बिकम डिस्टिंग्विश्ड एज द माइक्रोस्पोर्स विच आर हैप्लॉइड, जो कि फाइनली एक स्ट्रक्चर बनाएगा माइक्रोस्पोर का जिसका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड. Now we will see by diagram. फर्स्ट हम देखेंगे मदर सेल को लिया है इन्होंने जहाँ से, जिसकी डिप्लॉयड है, जो नेचर में कैसा है, डिप्लॉयड, जिसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2n, और ये जो सेंटर में ब्लैक डॉट है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, और ये जो पार्ट है ये होगा पोलन मदर सेल. फिर नेक्स्ट हम बी में देखेंगे क्या होगा, डिवाइडेशन की प्रोसेस जब शुरू होगी तो इनमें ब्रेकेज के लिए यहाँ ब्लैक डॉट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, और इससे क्या होगा, आगे चल के वो डॉट्स में हम फिर क्या होगा, 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा वो, जिसके अंदर 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे. एक मदर सेल के अंदर डेवलपमेंट होगा 4 पोलन मदर सेल्स का. देन नेक्स्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, मतलब 4, 1 2 3 4, इन चारों ने ब्रेकेज से पहले एक साइज अटेन कर लिया, उस साइज को हम बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर में मदर सेल न्यूक्लियस है और मदर सेल कवर किया हुआ है. नेक्स्ट है देन, अब इसमें भी डेवलपमेंट की प्रोसेस होगी. अब ये चारों अरेंज हो जाएंगे, जैसे कि ये पहले डिप्लॉयड थे, लेकिन अगर चारों अलग अलग इनने स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया, ये जस्ट ऊपर के 4, इनका चारों का अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, जिसमें मदर सेल भी है, सेंटर में न्यूक्लियस भी है, सारे इन्होंने हैप्लॉइड नेचर फॉर्म कर लिया, मतलब जो 2n क्रोमोसोम्स इनमें थे 1 1 1 1 कितने हो गए, 4, क्योंकि मियोटिक डिवीजन हुआ तो 2 से कितने बन गए थे यहाँ पे, 4. अब ये 4 सिंगल सिंगल हो जाएंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड. फिर ये सिंगल एक स्ट्रक्चर अटेन कर लेगा जिसका बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं, एक्साइन के जस्ट बिलो पे इंटाइन होती है. देन नेक्स्ट एक जर्म पोर होगा, जहाँ हम आगे पढ़ेंगे, इससे डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट का, यहीं इसी पार्ट से डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ नोन एज जर्म पोर विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस. और सेंटर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस. एक्सेप्ट न्यूक्लियस सेल का जितना भी पार्ट होता है, जिसमें हमने प्लांट सेल में, एनिमल सेल में पढ़ा है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम जो सब प्रेजेंट होते हैं, उसको पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. नाउ ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस थी जिसमें डेवलपमेंट, इसको हम डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, बट दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट स्टेप थ्रू विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स अकर. एट फर्स्ट pollen mother cell is taken, in second step division started in mother cell, then a structure is formed which is known as tetrahedral structure, but it is of pollen grains, so it is known as pollen tetral. And in next step 4 pollen grains are formed which is haploid in nature. In last step uninucleate pollen grains was formed. Now next is
Types of microsporogenesis. On the basis of cytokinesis, after karyokinesis, the process of microsporogenesis may be of following types. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के भी टाइप्स हैं, साइटोकाइनेसिस पे बेस्ड हैं, कार्योकाइनेसिस पे बेस्ड हैं, या हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो फॉलोइंग टाइप्स की होती है. फर्स्ट है सक्सेसिव टाइप्स, देन साइमल्टेनियस टाइप, थर्ड इज अदर टाइप. In first one is successive type. In this type of microsporogenesis, nuclear division and division of cytoplasm take place simultaneously. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर में डिवीजन शुरू होगा उसी तरह साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन शुरू हो जाएगा. जैसे कि अंदर से डिवीजन शुरू होगा, बाहर की लेयर में भी डिवाइडेशन शुरू हो जाएगा, दोनों का साथ में होगा, जो कि स्टेज होगी मियोसिस फर्स्ट स्टेज, जिसमें दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा. इट इज़ फॉर्म्ड बाय वॉल फॉर्मेशन. The second wall formation takes place after meiosis second. It is found in most of the monocots. अब मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में क्या डिफरेंस है? मोनोकॉट्स प्लांट्स वो होते हैं जो सिंगल बीज वाले होते हैं, जिनके बीज को अगर हम बीज से काटें तो वो बीज से कटता नहीं है, उनका सेम स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है, जैसे कि मेज़ है, भुट्टा है, वीट है. बाकी डाइकॉट वो प्लांट्स होते हैं जिनके बीज को अगर हम बीज से ब्रेक करें तो वो सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो, जैसे कि ग्राम ले सकते हो आप, चने को अगर तोड़ोगे तो दो सेम स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. Second type is simultaneous type. In this type, two nuclear division of meiosis 1 and meiosis 2 take place simultaneously. Successive type में क्या था? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था साइटोप्लाज्म के साथ, लेकिन साइमल्टेनियस टाइप में क्या होगा? दो न्यूक्लियाई का डिवीजन होगा एक साथ. सक्सेसिव में एक का हो रहा था. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई, अब हमने जब सक्सेसिव में एक का डिवीजन किया था तो दो न्यूक्लियाई फॉर्म हुए थे, लेकिन साइमल्टेनियस में जब आप दो न्यूक्लियस का डिवीजन करोगे तो कितने न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे? 4. वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अराउंड देम, और कोई भी न्यूक्लियस वॉल जब तक उसको सराउंड नहीं करेगी वो पॉसिबल नहीं है. द माइक्रोस्पोर्स दस फॉर्म्ड आर अरेंज इन टेट्राहेड्रल फॉर्म. अब जो माइक्रोस्पोर्स जो फॉर्म हुए थे वो किस फॉर्म में अरेंज होंगे? टेट्राहेड्रल फॉर्म, जो हमने अभी पढ़ा था. नेक्स्ट, अदर टाइप्स. In some plant, the first and second division in microspore mother cell are transverse types, so that 4 microspores are formed which are arranged in a linear tetrad. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन नहीं होता है, डायरेक्ट 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं, जैसा कि इन पॉलीएंथस ट्यूबेरोसा माइक्रोस्पोर टेट्राड इज लीनियर और टी शेप्ड. इन कॉर्नस एंड मैग्नोलिया डेक्यूशेट टाइप ऑफ टेट्राड्स आर फॉर्म्ड. अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, कॉर्नस और मैग्नोलिया, जिसमें लीनियर पॉलीएंथस ट्यूबेरोसा है जिसमें टी शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो ये डायग्राम में है और सीधे एक लाइन में दिया हुआ है, इसलिए इसको इन्होंने बोला है लीनियर टेट्राड. और लीनियर मतलब जो सीधे अरेंज हो, और टेट्राड जब 4 फॉर्म करे. तो अब हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले दिया हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो सक्सेसिव टाइप में भी डिवाइड हुई एक, और एक साइमल्टेनियस डिवाइड हुई. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस एक सक्सेसिव टाइप में हुई, एक साइमल्टेनियस में. सक्सेसिव में क्या हुआ था? हमारा न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे, 1 से 2 में डिवाइड हुए थे, और साइमल्टेनियस में क्या हुआ था? 2 से 4 में होंगे जी, 4 में होंगे, देखेंगे हम. नेक्स्ट में क्या होगा? सी नेक्स्ट, जब सक्सेसिव दिया हुआ है और साइमल्टेनियस में, सक्सेसिव में 2 फॉर्म होंगी और साइमल्टेनियस में ये 4 फॉर्म होंगी. तो जब आगे चल के हम देखेंगे कि वेट अ मिनट, सक्सेसिव में 2 होंगी, साइमल्टेनियस में 3 होंगी. या इट इज़ गिवन रॉन्ग इन बुक. 3 न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, सक्सेसिव में 1 2, हेयर 1 2 3. अब ये सक्सेसिव 2 से आगे जाके कितने में फॉर्म हो जाएगा? 1 2 3 4, और यहाँ जाके ये 3 में अरेंज हो जाएगा, लेकिन इसके सेंटर को भी काउंट किया, इसलिए इसको इन्होंने बोला है टेट्राड. ये प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जो एक सक्सेसिव टाइप से, एक साइमल्टेनियस के टाइप से. नाउ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स. The 4 microspores developing from microspore mother cell may be arranged in following ways. अब जो माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे मदर सेल से, वो 4 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं. फर्स्ट है आइसो बायलेटरल. आइसो मीन्स सेम, बाय मतलब 2, लेटरल मतलब लेटरली.
द 4 माइक्रोस्पोर्स लाई साइड बाय साइड, सेम होंगे और साइड बाय साइड अरेंज होंगे एक के, वो जो अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे आइसोबायलेटरल। और टेट्राहेड्रल में नाम से आप समझ सकते हो, मतलब 4 होंगे और कैसे अरेंज होंगे टेट्राहेड्रली, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ अरेंज हैं। पहले हमने देखा है टेट्राहेड्रल कैसे फॉर्म होता है। नाउ डेक्यूसेट, in this type the upper and lower pairs of microspores are arranged in opposite direction। अब C में देखोगे आप, वो डेक्यूसेट अरेंजमेंट है C में, ये C पार्ट आप देखोगे उसमें क्या होगा, जो अपर है और लोअर पेयर अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज है, पहली में 2 हैं तो एक में सिंगल है। नेक्स्ट है टी शेप, जिसमें स्ट्रक्चर टी शेप्ड होगा और माइक्रोस्कोप अगर टी है तो हम समझ सकते हैं नाम से कैसे अरेंज होंगे, हॉरिजॉन्टली, और नीचे वाले कैसे अरेंज होंगे, वर्टिकली, जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर डी में। नाउ नेक्स्ट है लीनियर, द 4 माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज ऑन अ वर्टिकल एक्सिस, लीनियर में सीधे सीधे लाइन में अरेंज होंगे 1 by 1। नाउ कंपाउंड माइक्रोस्पोर्स और pollen grains, normally pollen grains become free from each other, but in some plants like Calotropis, Dreams, Typha and Alodia, pollen grains combinedly form a group. These groups of pollen grains are called compound pollen grains। अब हमने नॉर्मली देखा जो हिबिस्कस का फ्लावर हमने लिया था, जिसमें हम बचपन से फ्लावर में स्टडी करते आ रहे हैं pollen grains और सब, उसमें pollen grains 4 अरेंज होते हैं और वो एंथर से निकले हुए अरेंज होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कैलोट्रोपिस है, ड्राइम्स, टाइफा एंड एलोडिया, इनमें पॉलन ग्रेन्स ग्रुप्स में अरेंज होते हैं और इस ग्रुप को बोला जाता है कंपाउंड पॉलन ग्रेन। इन कैलोट्रोपिस ऑल द पॉलन ग्रेन्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टुगेदर फॉर्म अ मास ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच इज कॉल्ड पॉलिनियम। कैलोट्रोपिस कैलोट्रोपिस मतलब आप सब ने हिंदी में अकहुआ का पेड़ देखा होगा, उसे इसका बॉटनिकल नेम कैलोट्रोपिस है। इन कैलोट्रोपिस ऑल द पॉलन ग्रेन्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टुगेदर, सारे जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म क्या करते हैं, एक पॉलन ग्रेन फॉर्म करते हैं, मास फॉर्म करते हैं इकट्ठा होकर, उसको हम बोलते हैं पॉलिनियम। 2 pollinia joined together by means of corpusculum, each pollinia contains a large number of pollen grains। आप डायग्राम में देख सकते हो 2 pollinia अरेंज हुआ, पहले pollen grains और माइक्रोस्पोरेंजियम के जितने भी pollen grains थे सब इकट्ठा होके एक फॉर्म करेंगे, मास फॉर्म करेंगे, जिसको बोला जाता है पॉलिनियम। फिर वो दोनों पॉलिनियम जॉइंट होंगे किसके थ्रू, कॉर्पस्कुलम के थ्रू, ऊपर देख सकते हो आप लेबल किया हुआ है। ईच पॉलिनिया कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब वो जो 2 पॉलिनिया जो अरेंज हैं उनमें क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। Now, structure of mature pollen grains. Each pollen grains is a unicellular uninucleate body having 2 lateral balls। अब जो भी pollen grains होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, मतलब सिंगल सेल होंगे, और यूनिन्यूक्लिएट बॉडी होगी मतलब सिंगल न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होगा। अगर सिंगल सेल है तो उसमें न्यूक्लियाई भी एक ही होगी, लेकिन 2 लेटरल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब 2 वॉल से कवर होगा। द वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन्स कंप्राइजेस ऑफ 2 मेन लेयर। अब जो 2 लेयर उसमें होती हैं उसको एक्साइन बोलते हैं और इंटाइन बोलते हैं, जो हमने अभी भी लास्ट जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में देखा था कि आउटर लेयर एक्साइन होती है, इनर लेयर इंटाइन होती है। अब एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, जो स्पोरोपोलिनिन है वो उसको केमिकल्स और डिकम्पोज होने से बचाता है। केमिकल्स और इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज द एग्जाइम इज कवर्ड बाय येलोइश विस्कस एंड स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पॉलन किट मटेरियल। लेकिन जिन प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है उनमें ये जो एक्साइन लेयर है वो एक येलोइश चिपचिपे पदार्थ से कवर होती है, जिसको पॉलन किट बोला जाता है। एट 1 और मोर प्लेसेस द एक्साइन इज़ वेरी थिन। एक या एक से ज़्यादा जगह पे देखा गया है कि एक्साइन बहुत पतली होती है। दीज रीजन्स आर नोन एज जर्मपोर, और जहाँ से वो पतली हो उस जगह को बोला जाता है जर्मपोर। जो हमने अभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जब यूनिन्यूक्लिएट पॉलन ग्रेन फॉर्म हुआ था उसमें देखा था कि आगे जो मेल गैमेट है वो भी उसी लेयर में फॉर्म होता है, इसलिए वो लेयर बहुत पतली होती है। थ्रू विच द पॉलन ट्यूब ग्रोज आउट ड्यूरिंग पॉलन जर्मिनेशन, यही प्रोसेस है। अब जब पॉलन का जर्मिनेशन होगा तो उसमें से एक ट्यूब निकलता है, इसलिए उस लेयर का पतला होना बहुत ज़रूरी है।
द इंटाइन कंसिस्ट ऑफ पैक्टोसेल्यूलोजिक सब्सटेंस, और जो अंदर की लेयर होती है इंटाइन लेयर वो किसकी बनी होती है, पैक्टोसेल्यूलोजिक सब्सटेंस, सेल्यूलोज की बनी होती है, उसको नाम दिया गया है पैक्टोसेल्यूलोजिक सब्सटेंस. Okay, that's all for today. I will continue in next video. I will tell you about dehiscence of anther and male gametophyte एंड इट्स डेवलपमेंट. इस वीडियो में हमने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद हम देखेंगे कि उसमें मेल गैमीट कैसे फॉर्म होता है. जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होगी या मेगास्पोरोजेनेसिस की, फिर पॉलिनेशन होगा इनमें, और पॉलिनेशन होने के बाद अगर पॉलिनेशन पॉसिबल है तो पॉलिनेशन होगा, नहीं तो उनमें किसकी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, गैमेट फॉर्मेशन की. जिसमें और गैमेट फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, गैमेट का बनना. तो इसलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद कौन सी प्रोसेस होगी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट. फिर जब वो गैमेट फॉर्म हो जाएगा फिर उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, जिससे फिर वो मेल फीमेल के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेगा और फिर डेवलपमेंट होगा एम्ब्रायोजेनेसिस का. तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है वो पढ़ ली है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है. थैंक यू.